call is now being recorded. Good morning, everyone. In today's class, I'll be talking about trigonometric equations. I already mentioned as far as the CBSE deletion of syllabus is concerned, this specific subtopic with general solution has been deleted. So I'll be not talking about the general solution and the different kind of problems which generally we used to take every year, but only the basic idea, the fundamental idea of getting the solutions in one rotation. That means from 0 to 2 pi. Any equation which involve the trigonometric functions is known as trigonometric equation. So for example, sin x is half, tan x is minus root 3, cos x is equal to sin 2x. So we will not be covering the equations of the following type, right? But simple type of values, and that too the answers in the 0 to 2 pi. So that we are going to consider. So solution of a trigonometric equation, of course, the values of all the angles which satisfy that equation. So trigonometric equations may have infinitely many numbers of solutions, out of which first two solutions की जो मैं बात करूंगा, they are important. They will be referred to as the principal solutions. So solutions which lie in the interval 0 to 2 pi. Or general solution, again, as already mentioned, this is deleted. Consider this. Find the principal solution of the equation sin x equal to root 3 by 2. Before I discuss this question, थ्रू आउट आप जरा एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए. इसी तरह के क्वेश्चन आपको फर्दर मिलेंगे. These type of questions are only required to be considered. So let me come to the basic idea and check this out. This is my quadrant. First, second, third, and fourth. Further recall, here we already have seen all are positive. Here the sign and its reciprocal positive. Next it is tan and its reciprocal is positive. Next is cos and secant as its reciprocal is positive. Now we are, if there is angle theta in the first quadrant, in second quadrant we will take pi minus theta, in third quadrant it is pi plus theta, and in fourth quadrant it is 2 pi minus theta. So सिर्फ एक आपको जो चीज याद करनी है वो ये है, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, and 2 pi minus theta. So how I am going to make use of it? क्या मतलब है वो यहां से शुरू करते हैं. Find the principal solution. So as mentioned, principal solution का मतलब ये वैल्यूज आपको बतानी है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है. इक्वेशन इज sin x is root 3 by 2. चेक दिस आउट. एक वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है, साइन कब होता है रूट 3 बाई 2, 60 डिग्री. सो जिसे अब मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई बाई 3. 60 डिग्री तो मुझे पता ही था. और दूसरी चीज क्या सोचनी है, साइन पॉजिटिव है. पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा एक तो मैंने वैल्यू क्या निकाल दी, पाई बाय 3. तो ये मेरा थीटा आ चुका है, पाई बाय 3. सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया है, विच एंगल टू बी टेकन, पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस थीटा का मतलब पाई माइनस थीटा की जगह लिख दिया पाई बाय 3.
तो इसका मतलब ये क्या लिखा गया, इससे x कितना आ गया, ये साइन चल रहा था ना, तो पाई पाई बाय पाई बाय और 2 टू पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3, they are referred to as the principal solution. तो सिंपल 1 मार्कर सिचुएशन यहां से बनेगी, बट रिमेंबर दिस इज द बेस फॉर माय 5 मार्कर क्वेश्चंस इवन जो 12th में आने वाले हैं। तो 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, even for 12th this understanding is very important that how I am getting these two angles. Consider this, find the principal solution, वो ये मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ही बात कर रहा हूं। tan x है -1/√3। आप देखिए धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस बननी शुरू हो जाए, सेकेंड एंड फोर्थ। tan नेगेटिव है, और tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली बात ये माइनस एज इट इज। अब जरा सोचिए 1/√3 को मैं tan की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 6। 6। राइट। बट अब मुझे कहाँ जाना, ये तो देखो थीटा लिखा गया मेरा पाई/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, पाई माइनस थीटा, फोर्थ में क्या था 2 पाई माइनस थीटा, थर्ड में था पाई प्लस थीटा। ये मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं सेकंड एंड फोर्थ वेयर tan इज नेगेटिव। तो क्या लिखा जाएगा, ये सेकंड में आने का मतलब पाई माइनस थीटा, फोर्थ में आने का 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। यस, तो ये आ गया tan 5 पाई/6 और tan 11 पाई/6। याद रखिए ये किसके इक्वल चल रहा था, tan x के। तो फाइनली x वुड बी, माय प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर द फॉलोइंग टू एंगल्स, माय आंसर। सो जनरल रूल क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में बात करनी है, और उस क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, इज इट पाई माइनस थीटा, इज इट पाई प्लस थीटा, और इज इट 2 पाई माइनस थीटा। तो जस्ट यू नीड टू लर्न दैट। एनी डाउट टू एनीवन? Before we move on, mark your attendance.
So what's the answer? 5 pi by 3, 4 pi by 3. चलिए चेक कर लेते हैं हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड. अभी तो ये माइनस एज इट इज और √3/2 होता है sin π/3. बट क्योंकि नेगेटिव आंसर है सो नेगेटिव आंसर आपका कहाँ हो जाता है? Third चेक and करिए. fourth quadrant. You have third and fourth quadrant where sign is negative. तो वो मैं क्या लिखने वाला हूं? sin पाई प्लस थीटा. ये एंगल जो आपने सोचा था लॉजिकली वो मेरा थीटा है और दूसरा हो गया पाई सॉरी 2 पाई माइनस थीटा. So this would be sin 4 पाई/3 और इधर आ गया sin 5 पाई/3 और ये sin x के इक्वल चल रहा था, याद रखिए. So that my final answer is 4 पाई/3 और 5 पाई/3. Both are my required answers wherein as a principal solution ये satisfy होगा. इन्होंने तो लिखा फाइंड द सॉल्यूशन बट मैं सॉल्यूशन की जगह यहाँ आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही ले रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन रेफर टू द जनरल सॉल्यूशन बट दैट इज नॉट इन आवर करिकुलम दिस टाइम. एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. Check out this next question. My first observation should be एक cos पॉजिटिव है और वो कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट and fourth quadrant. So I just need theta and I just need 2 pi minus theta. So I will not focus now on wherein my angle is not positive. Or half can be written as cos pi Pi by by 3. बस अगर एक π/3 अगर मैंने सही सोच लिया तो दूसरा मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई माइनस π/3 2 पाई माइनस थीटा. So So 5 that pi by 3 or pi by 3. तो π/3 और 5 pi/3 your required answer. Find the principal solution of the following. तो इजी है फर्स्ट पार्ट तो क्विकली मैं आप बता देता हूं, आप भी साथ साथ समझ जाएंगे. tan पॉजिटिव है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. थीटा पाई प्लस थीटा. √3 कब होता है? Pi by 3. π/3. तो अगर एक π/3 आ गया another 4 would pi by 3 and pi by 3. this. So my answer is π/3 or 4 π/3. Your required answer.
बट द ओनली प्रॉब्लम इज, अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, मैंने इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लॉजिक बताया, बट सीकेंड क्या होता है, 1/cos। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता, इजंट इट सिमिलर टू दिस? तो सीकेंड x2 का मतलब व्हेन cos x इज हाफ, और इसे सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन यही था। सो द सेम सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो cos x हाफ, cos पॉजिटिव First फर्स्ट, and fourth. फोर्थ, थीटा 2 पाई माइनस थीटा पाई/3, और 2 पाई minus pi/3, so that the answer of this is pi by 5/3 and 5/3. or 5 pi/3. That's it. So इसका मतलब अब चाहे क्वेश्चन मेरा कोसिकेंट में होता तो मैं उसको साइन में चेंज कर देता रेसिप्रोकल रूल से, कॉट में होता तो मैं उसे टैन में चेंज कर देता, बिकॉज बेसिक फॉर्मूला हमने जो देखे हैं या इजीली याद हैं वो साइन कॉस टैन के रहते हैं, और उसमें वी कैन ऑलवेज इजीली कन्वर्ट। Yes, solve third and fourth. I'm waiting for 2 minutes थर्ड क्वेश्चन के लिए। करिए आप सभी। The third is 2 pi/3 or 5 pi/3. So 5/6 and 11/6. एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक मिनट जी। ओके, थैंक यू। यस, सो चेक दिस आउट। कॉटेक्स है -√3, तो मैं इजीली, आप कॉट में भी डायरेक्ट कर सकते थे, पर चलिए ये लिख दिया। So cot 60 pi/3, which means यस, और टैन कब होता है, अगर मैं बात करूं नेगेटिव, तो टैन नेगेटिव रहा था second यहाँ। and Second fourth. and fourth. सेकंड का मतलब π-θ 2π-θ, राइट। तो और हमने ऑब्जर्व क्या कर लिया था, कब होता है टैन 1/√3, टैन 30°। तो इसका मतलब फाइनली टैन π-θ और टैन
2 pi minus theta, which will give me the final answer. आपने यही बताया था ना शायद 5 pi by 6 And and 11 pi by 6. 11 pi by 6. Your answer. और इसे सॉल्व करने के लिए द वे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, जस्ट रेसिप्रोकल, साइन हाफ होता है अगेन 30 डिग्री, Pi But- by 6. नेगेटिव कहाँ होता है साइन? Third and fourth. थर्ड एंड फोर्थ, और थर्ड के लिए अब याद हो जाता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए हो जाता है 2 पाई माइनस थीटा. 7 pi by 6 and 11 pi by 6. So your required answer. I'm sure everyone is able to understand and do it. Any doubt to anyone? Kinshuk, any doubt? Yes, sir. बताओ. Sir, actually, from if we do it by cot, it's coming 2 pi by 3 and 5 pi by 3. Not possible. Of course, फिर आपने गलत करा है. Find out your own mistake. Obviously, answer is unique. वो गलत किया है आपने अपनी कैलकुलेशन में. जहां पाई बाय 3 ले रहे हो वो पाई बाय 6 रहा होगा. यू नीड टू चेक आउट क्या गलती कर रहे हैं. तो आप चेक कर सकते हैं. एवरी क्वेश्चन इज डिस्कस्ड. ये वाले हो चुके हैं. Okay, now consider this question. Sin x is equal to cos x. Solve करना है इसे. So how will you do this? Think logically. Dividing by cos x both the sides. In simple word मैं बात कर रहा था tan x is equal to 1 के केस की. So we already have learned the method. सोचिए tan x 1 कब Tan कब 45, which is pi by 4. एक तो हमें डायरेक्ट पता था पाई बाय 4 45 डिग्रीज. और अब देखो मैं ये डायग्राम भी धीरे धीरे कहूंगा, जरूरत ही नहीं है. 5 pi by 4. tan पॉजिटिव और कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट. Third quadrant. थर्ड में आने के लिए पाई प्लस थीटा करते हैं. ये धीरे धीरे याद ही हो जाता है. और x इज पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4. Your required answer. So let me now change the screen view and show you the assignment. कि किस तरह की चीजें हैं जो अब आपको असाइनमेंट से स्पेसिफिकली कब चेक करना है. Give me a minute, I'll change the screen view. Well, next chapter जो हम start करेंगे from tomorrow, that will be complex numbers and quadratic equations. और उसमें reduce के accordingly ही हम main चीजें करेंगे. Means polar form and square root of a complex number, that we are not going to cover, though they are very important from competitive point of view. But we need to follow certain things जैसे CBSE का है, तो we will not do that. I hope my screen is visible. Yes, sir.
सो दिस इज योर असाइनमेंट. आप चेक करिए ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट में से ये फर्स्ट पेज तो आपके डिग्री और रेडियन बेस्ड क्वेश्चंस रहे थे, वो ऑलरेडी कंसिडर्ड. फिर ये वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th, यू जस्ट नीड टू लर्न के वो ये कैसे रूल्स हमने सीखे थे. क्वाड्रेंट रूल चेक करिए, मैंने अब जो शुरू करा है लास्ट 3 क्लासेस से, इजंट इट योर क्वेश्चन नंबर 13, यहां से अब हमारा स्टार्ट हुआ था ग्रेटेस्ट वैल्यू और ये बताना. देन आई कंसिडर्ड 15th क्वेश्चन, रिकॉल दैट sin A cos B माइनस cos A sin B टाइप्स. 16th मैंने दिए लिखा नहीं था, बट आप चेक करिए ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं क्वाड्रेंट रूल्स कि कैसे मैं वैल्यू निकालूंगा cos 90 प्लस थीटा की या secant 270 डिग्री प्लस थीटा, odd multiple of pi by 2 and so on. So using that idea, then recall 17th क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था. Followed by these are 21st I have solved. 22nd को पहचानिए, that we already have discussed. रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है. और फिर ये वाले डायरेक्ट थे, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला sin a प्लस sin b का फॉर्मूला टाइप लगा दिया and then divide them, you will have your answer. So that for your homework. 25th question आप चेक करिए, I have considered all the parts. 25th question specifically. So proving वाले इस तरह के important हैं आपके. और ऐसे ही 26 क्वेश्चन में भी रिकॉल मैंने ये सारे पार्ट्स कंसीडर करे थे. डी पार्ट होमवर्क में कहा था, क्यों? क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल वी ऑलरेडी हैड कंसीडर्ड. 27th क्वेश्चन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का सीखा था. अगेन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके या माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में ये एक्सप्रेशन लाए करेगा. 28th लास्ट क्लास में हुआ था और कहा था रिमेनिंग 2 पार्ट्स वेरी सिमिलर है. रिकॉल 29th ए और बी पार्ट मैंने इसके आपके कम से कम करवा ही दिए थे. एंड 30th का ए पार्ट करवाया था, बी पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर. तो जो सिमिलर टाइप की वैरायटी है दे आर ऑल कंबाइंड टुगेदर. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, याद करिए आई डिड कंसिडर ए पार्ट. और अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, देयर इज नो डिफरेंस इन ए एंड बी पार्ट. 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमने किया था. और अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, वी ऑलरेडी हैव कंसीडर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सिमिलर क्वेश्चन. सोच के देखिए एनीवन सी पार्ट में या डी पार्ट हो, क्या करेंगे सी पार्ट में? तो सी पार्ट के अंदर हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, sin 9a प्लस sin 3a करेंगे. यस गुड. आप चेक करिए सम देखो यहाँ 3 और 9 इसका सम 12 है और 5 और 7 इनका सम 12 है. इसीलिए sin 3a प्लस sin 9a कंबाइन होकर फॉर्मूला उसका लगेगा और sin 5a एंड sin 7a ये अलग होकर फॉर्मूला लगेगा. Check it out. 32 we already discussed. 33 again already discussed. और अब इसके बाद जो बात करी गई है वो है सॉल्यूशन. जो मैंने आज आपको मेथड बताया है क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंगली, तो आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो चुका है. आप इसे कंसीडर कर रहे हैं ओनली द एंगल्स इन 0 to 2 pi. सो क्वेश्चन नंबर 34 तक सिर्फ अब आपको करना है. 35 नॉट टू बी डन, 36 नॉट टू बी डन, 37, 38,
39 ये सब डिलीट हो गए हैं, और इन्हीं में एक्चुअल में वैसे अगर मैं बात करूं मेन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स थे तो ये सारे डिलीटेड हैं। तो 35 से लेकर आप मार्क कर लीजिए 35 से 39 तक, सो दे आर ऑल डिलीटेड। तो 40th ग्राफ वाला मैंने बता ही दिया है। ऑफ कोर्स हॉट्स वाला ओनली फॉर दोज हु रियली वांट टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट दीज में बी ऑफ कोर्स बी अवॉइडेड। एग्जाम में हॉट्स में ऑफ कोर्स हम नहीं दे रहे हैं, बट यू कैन चेक इट आउट, लॉट मेनी क्वेश्चंस आर इन दी हॉट्स, और फॉलोड बाय दी असाइनमेंट के आंसर, ये हर एक का आंसर दिया हुआ है, फॉलोड बाय दी आंसर्स ऑफ दी हॉट्स वाले क्वेश्चंस। So that way your all the assignments are designed। तो इसीलिए एक तो इन सभी को बहुत ध्यान से अब आपको करना है। UT1 मैं बताओ सॉरी UT2 का आपको बता ही दिया है किस तरह से रहने वाला है। So these two chapters will be coming। So next class से I am going to start with your next chapter, complex numbers। Any specific doubt to anyone related to trigonometry? Anything to be asked? Another very important thing is आपका जो एग्जाम का रहेगा, अगर मैं मिड टर्म की बात करूं तो वो 40 मार्क का वेटेज है। पॉसिबली दैट स्कूल विल डिसाइड के 80 मार्क का पेपर लिया फिर उसको 40 में से कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इज अ इंटरनल पॉलिसी। सो साथ में जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, राइट। सो 10 मार्क्स का मिड टर्म में और 10 मार्क्स का फाइनल टर्म में। तो 10 मार्क्स में it is about your attendance, it is about your submission of your assignments and your homework of NCERT exercises जो link already आपके classroom में है, and third most important thing is about your activity file। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एक्टिविटी फाइल के पेजेस भेजे भी थे, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द क्लासरूम ऑल्सो। फर्स्ट 5 एक्टिविटीज you just need to copy that, by the activity file। I am sure none of you or maybe hardly किसी कुछ नहीं शायद किया हो। So get the activity, new activity file, first 5 activities आप उसमें लिखिए और उन्हें मैं एक क्लास में या 2 क्लासेस में I am going to explain that also। But टाइम अभी है, बाद में प्रेशर आपके पास बढ़ने वाला है, रिमेंबर दैट। तो इसीलिए एक्टिविटी फाइल का काम अभी आप जल्दी से उसे कंप्लीट कर लीजिए, 5 एक्टिविटीज, एंड देन देयर विल बी द वाइवा एग्जाम, ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। तो वो वाइवा एग्जाम में आपसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला सुने जाएंगे। सो आई विल टेल यू द प्रोसीजर ऑफ दैट, कि वो फार्मूला आपने कोई भी एक फार्मूला, वो रैंडम लिस्ट आएगी, यू जस्ट नीड टू पिक कि मुझे कौन से नंबर का चाहिए फार्मूला। आप जिस नंबर को बोलेंगे आई विल सेलेक्ट दैट, और उसके अंदर 5 फार्मूलाज लिखे होंगे, एंड देन यू नीड टू आंसर दोज 5 फार्मूलाज। तो उसी समय आपको रैंडमली आप जो आंसर बोलेंगे वो मैं लिख रहा हूँ, जस्ट इन 2 मिनट्स 1 मिनट वो मैं बता दूंगा, और देन एक जो आपकी एक्टिविटी होंगी उनमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन मैं जनरल पूछने वाला हूँ। सो एवरीथिंग विल बी इन अ रिकॉर्डिंग, तो सो दैट व्हेनेवर आई हैव टू सबमिट द प्रूफ टू द CBSE, क्योंकि CBSE इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रूविंग। तो स्कूल्स आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि किस तरह से आपने एग्जाम्स लिए, इंटरनल में नंबर दिए हैं, ज्यादा दिए कम दिए, तो कहीं कम दिए तब दिक्कत है, ज्यादा दिए तब भी वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तो इसीलिए आई एम वेरी क्लियर कि मुझे किसी को शौक नहीं है 20 में से 20 देने का, 19 देने का, 18 देने का। आई विल गिव 20 में से 12 जो मिनिमम होते हैं, तो दैट आई विल गारंटी टू एवरीवन। सो यू डू नथिंग, 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट उसके ऊपर एक नंबर नहीं मिलेगा अगर आपका काम प्रॉपर नहीं होता है। अच्छी बात है अगर आप इस चीज को समझ लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर ट्रिगो में से डाउट था एक। यस बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 24 का सी पार्ट।
असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। Yes, sir. I need to open it again. 24th. Yes, sir. C part. 24th। अच्छा, वो मैं हॉट्स देख रहा था। ठीक है, एक मिनट। मुझे समझ 24th में तो है ही नहीं, एक ही कोई पार्ट है। एक मिनट भैया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप ही बता दो अगर 24th में कहीं सी पार्ट हो तो। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Sir, 25th. तो एक्चुअली मैंने जो खोला उसमें 24th है। सर 25th का C part. सो वर यू एबल टू डू द बी पार्ट? Yes, sir. तो एग्जैक्टली सी पार्ट है। आप फर्स्ट एंड थर्ड इन द न्यूमरेटर कंबाइन कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अप्लाई दी हाफ एंगल फार्मूला, और जो साइन थीटा है वो क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो अप्लाई देयर हाफ एंगल फार्मूलाज सेम वे इन द डिनोमिनेटर। Okay, sir. Thank you. ट्राई इट आउट, नहीं होता तब बताना, वरना सिंपल है, हाफ एंगल फार्मूलाज टू बी यूज्ड। चलिए, टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस। डू इट। Everyone, mark your attendance, and then you can leave the class. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Okay, ji. Thank you.